There, this is Dr. Usha Kumari, Assistant Professor, Department of English. Today, we'll be doing the sixth chapter of the novel Kantapura. In this chapter, we'll see that the novel or the setting or the scene of the novel shifts from Kantapura village to Skeffington Coffee Estate. It is a huge plantation spread over 10,000 acres, and its owner is a red man, white man, or you can Englishman, that is known as Hunter Sahib. As he is moved about with a hunter in his hand, now whipping this worker and now that to make them work faster. By the time of present story, he was dead and his nephew had been placed or had taken his place as the owner of this Skeffington Coffee Estate. The police who worked on the estate or Skeffington Coffee Estate were recruited from the plains and with the false promises. They were given 1 rupee each as advance and were promised a 4 anna bit for a man and 2 anna bit for a woman as daily wages. They were also told that they would get plenty of white rice and they would merely be required to pick coffee leaves. But the reality was totally different. They would not put any hard labor. The simple poverty stricken people were taken in by these promises or these false promises. Once the coolies were brought to the coffee estate, the manners of the foreman charged will change. He grew harsh and exploited them in many ways. All promises were forgotten, no wages were given, and they were given small huts to live in a frugal diet. They were made to work hard from 5 in the morning till late in the night. If anybody took rest or slow the movement of the work, he was whipped. The worker also exploited sexually. The white sahib would have this or that woman who tickled his fancy. If woman refused him, the husband or father wages were cut. He was given a whipping, and once when a Brahmin workman refused to send his daughter to the Sahib flew into such a rage that he shot the Brahmin father dead. If a pariah woman says no, the foreman would drag her up in the middle of the night. In short, the coolies were in a miserable condition and had to suffer terribly. But there were also a few Brahmins who could not be suppressed and was so very easily. Among them were 2 young Brahmin clerks at Skeffington Coffee Estate named Gangadhar and Vasudev. They had progressive and enlightened views. They took the pariahs to Kantapura to take part in the Gandhi Bhajan, and they took Murthy to come to the estate to teach ignorant pariahs or coolies. One evening, Murthy goes to the estate in order to teach the pariah, but he stopped at the gate at the Skeffington Coffee Estate by Badekha. There is a hot exchange of words between Murthy and the policeman. By now, Vasudev comes with the Gangadhar and others, the foreman and his porters also come there. There is a much swearing and cursing and hurling of abuses. The fierce fight follows. There is whipping and pulling of hair and beards. The women fell upon the foreman and Badekha and would have torn them to shred had not Murthy intervened. इस चैप्टर में हम देखते हैं कि स्कैफिंगटन कॉफ़ी एस्टेट की तरफ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। यहाँ ये बहुत ही बड़ा कॉफ़ी एस्टेट है जो कांतापुरा की पूरी पहाड़ी और घाटी में फैला हुआ है। इसने लगभग 10,000 एकड़ से ज़्यादा लैंड को एक्वायर कर रखा है। एंड इसका जो ओनर है दैट इज़ मिस्टर हंटर साहिब, वो जो अंग्रेज़ हैं,
हंटर साहिब। वो अपने हाथ में एक हंटर रखता है और कभी किसी वर्कर को मारता है, कभी किसी वर्कर को मारता है। दैट्स वाई हिज नेम इज़ हंटर साहिब। और जब हमारी स्टोरी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि इस सीन में 6 चैप्टर में कि हंटर साहिब है वो रिप्लेस हो गया, उसकी डेथ हो गई है और उसके जो है उसके नेफ्यू जिसे न्यू साहिब के नाम से जाना जाता है वो ऑनर बन जाता है स्कैफिंगटन कॉफ़ी स्टेट का। बोले जो यहाँ स्कैफिंगटन कॉफ़ी स्टेट पर काम करते हैं वो प्लेन से आते हैं, उनके साथ झूठे प्रॉमिसेस किए जाते हैं कि उनको 1 रुपया प्रतिदिन काम करने के लिए एडवांस में मिलेगा और उनको ये भी प्रॉमिस किया जाता है कि 4 अन्ना एक बिट आदमी को वेजेस मिलेगी एंड 2 अन्ना एक बिट वुमेन को मिलेगी। उनको बहुत सारा राइस खाने को मिलेगा एंड उन्हें सिर्फ एक ही काम करना है, जस्ट टू पिक द कॉफ़ी लीव्स। और लेकिन ये प्रॉमिस झूठे होते हैं और जब वो कॉफ़ी स्टेट पर आते हैं तो उनसे बहुत सारा काम कराया जाता है और जो सिंपल गरीबी में जकड़े हुए लोग हैं वो इन प्रॉमिसेस से ग्रेड में आकर, लालच में आकर, इन्फ्लुएंस में आकर स्कैफिंगटन कॉफ़ी स्टेट पर आ जाते हैं। वंस द कुलीज वर ब्रॉट टू द कॉफ़ी प्लांटेशन, उनका जो फोरमैन होता है, जो इंचार्ज होता है, वो बहुत हार्श होना शुरू हो जाता है और जो भी प्रोमिस किए जाते हैं वो भी लोग भूल जाते हैं, कोई भी प्रॉमिस पूरा नहीं होता है और उनको छोटी छोटी हट्स दी जाती हैं। उनकी जो डाइट्स है खाने के लिए भी बहुत कम दिया जाता है, दैट इज़ फ्रूगल डाइट। और उनसे सुबह मॉर्निंग में 5 से लेके टिल लेट नाइट वर्क कराया जाता है। इवन उनको वीप्स मारे जाते हैं अगर वो प्रॉपर फास्टर काम नहीं करते, कोई रेस्ट नहीं लेने दिया जाता। और सेक्सुअल हरासमेंट भी यहाँ पर होता है। न्यू साहिब को जो भी कोई फीमेल पसंद आती है तो वो उसे अवेलेबल कराने के लिए अपने आदमी भेजता है और अगर कोई इनकार करता है तो उसे कि 1 वीक की वेजेस काट ली जाती हैं, उनको वेपिंग की जाती है, मारा जाता है। और अगर कोई पेरिया कैटेगरी से है ये फीमेल तो उसको रात में जो फोरमैन हैं, जो आदमी हैं मिस्टर न्यू साहिब के वो उसे घसीटते हुए ले आते हैं। लेकिन एक बार ऐसा होता है कि एक ब्राह्मण जो व्यक्ति हैं उनकी बेटी को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है न्यू साहिब, और जब विरोध करता है ये ब्राह्मण तो उसको वो एक गन लेके उसको शूट कर देता है और लो भी वाइट पेन की हेल्प करता है, स्कॉट फ्री ही बिकम स्कॉट फ्री आफ्टर विनिंग द केस। उस पर कोई एलिगेशन से उसको फ्री कर दिया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट भी यहाँ पर है, हर तरह का एक्सप्लॉयटेशन है पुलिस का इस स्कैफिंगटन कॉफ़ी स्टेट में। यहाँ पर 2 क्लर्क हैं, ब्राह्मण क्लर्क वासुदेव एंड गंगाधर, जो सिटी ब्रेड हैं और थोड़े से एनलाइटन हैं, उनको नॉलेज है। वो कांतापुरा में पेरिया लोगों को स्कैफिंगटन स्टेट के जो पुलिस हैं उनको भजन में भी लेकर जाते हैं और वो मूर्ति को इनवाइट करते हैं कि वो पुलिस को आकर पढ़ाए। बड़े का पुलिस वाला जब उनको गेट पर रोकने की कोशिश करता है मूर्ति की तो वो विरोध करते हैं, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स उनके बीच में होता है और ये फोरमैन जो है इसके स्पॉटर भी आ जाते हैं और एक छोटा सा वहाँ झगड़ा भी हो जाता है, आपस में कर्सिंग और हर्लिंग ऑफ अब्यूजेस होता है। और इस तरह से आपस में झगड़े होते हैं और मूर्ति बीच बचाव करता है। इस तरह से दिस वाज द 6th चैप्टर, समरी ऑफ द 6th चैप्टर। इफ वांट टू सी मोर प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and wait for the next video with the next chapter. Thank you. Have a nice day.